Hi Dhimanji. Hello. Hello. Welcome to Levels Cancer and ZenOnco.io. Thank you. This, yeah, our pleasure to have you with us. This is a cancer healing journey where we invite speakers who have gone through cancer, maybe as patients, survivors, or caregivers, to share their journey so that other cancer patients and caregivers can get inspired by listening to your journey. So thank you so much for joining us. It's an honor to have you with us. Thank you. Thank you very much. Yeah. It's an honor to have this platform to speak. Hi, everybody. My name is Dhiman. And today I'm going to share the story, cancer journey of my wife, Surabhi. Uh, we are staying in Navi Mumbai. So it was not a very peculiar symptom which actually detected her cancer. I wanted to start with that because it's a symptom generally which we usually miss. Uh, she was working and she had gone for a tour outside Mumbai. So she had been complaining of a fatigue for some days. And I thought that maybe it's due to the extensive touring and the long working hours that she was facing fatigue and she was having a little bit of headache. And this is in the month of January 2019. So this continued for about a week or so. And then one day she said that she was having trouble even walking from the couch up to the bedroom. So I thought there must be some problem. So I took her to the doctors, and it was there was a lot of malaria and dengue cases going on at that time in Mumbai. So the doctor immediately advised a blood test. Now, once we went for the blood test, next day the laboratory actually called us, saying that the sample might be contaminated. Your reports are not normal. Come and give a sample once again. So I was working that day. So I told her that you take the day off and go and give the sample. She did so. Now what we did was we went to another laboratory also just to be sure that the reports are all right and one lab doesn't make a mistake. So and when we went to the second lab that very night, the second lab also called and said the same thing. There must be something wrong. So the our WBC counts were exceptionally high. So we ran to the doctor that day. The doctor said that this is beyond my scope. You go and meet a hematologist. So we went and met a hematologist. And after looking at the reports, he said it seems like leukemia, but we are not sure of the type yet. So we need to get a few genetic tests done in order to get it confirmed what is the type, and then we can commence treatment. So it started with the usual course, like they gave steroids for a week, and that went on for about 1 week. Our counts lowered a bit, but not as much as expected. So, and then once the reports came in, the type was confirmed, and since we were already in Mumbai, so we went to Tata Memorial Hospital as usual. Whoever is staying here generally prefers to go there. But it's a difficult venture because the crowd is quite huge over there. But fortunately, we had a few colleagues who were very helpful and managed to get us there in time, guided us where to go, what not to go. Otherwise, it's a maze, people get lost there. So now the takeaway from here, first of all, is that the symptoms which comes for, and I can talk mainly about blood cancer. It starts usually with nausea, fatigue, and a general sense of being very tired throughout the day. So it goes out to everybody without saying that in case if you feel so, and God forbid if it turns out to that way, but please get yourself tested. There's no harm in getting tested once in a while. Now coming back to the journey. So, but there is one more point. Initially, when the diagnosis was made, the first time we heard blood cancer, it was like we must be kidding. It can't be like that. So there's an initial denial that is there, that it can't be cancer, because that's the last thing anybody expects to hear. So, but anyways, we accepted it. It went ahead. Now we got information that there are many types of blood cancer, some of which are curable, some of which are difficult. So we were expecting that it might turn out to be an easy one, but unfortunately, it did not turn out so.
So once we went to Tata, they also carried out their own set of tests and confirmed that yes, the type which is confirmed is correct, and you need to start chemotherapy immediately right now. So she started chemotherapy on 8th of March 2019 at Tata. As you can understand, it's a difficult procedure, and first day she was all tears once the first chemo started. It's like, but then she got herself, actually Surbi then started consoling me. I got a little flustered that what's going on, why are you crying and all that, because you can understand the chemo creates a very big effect inside your body, and we being outside, we can only see the effect which goes on outside, and that starts until the late stages. But what the patient feels right at that point is very difficult to understand at this time. But I would suggest that anybody who is starting on this course or has been through this, somebody who has been through this already knows. If somebody unfortunately is starting on this course, let us not lose hope initially. Let us start it. Let us start it, go with it, because cancer is such a disease which is unique. It's unique to everybody. So you can't say that, okay, X has had this kind of a course of treatment and this is the end result, so Y will also have something like that. It's not like that. Everybody's response is different. Everybody responds differently to the treatment. So uh, keep fighting. That's all I want to say. Keep fighting, and keep your hopes up always, because the hope that we understand as a feeling actually creates a lot of chemical reactions inside your body, which we don't see it from the outside. And doctors also used to say the same thing. Although the doctors nowadays are quite open with the patients, they discuss the prognosis, they discuss the outcomes, what are the treatment protocols and everything. But still they try to keep up a hope, and the patient should also carry forward with it. देखिए फाइनली क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम नहीं जानते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। बट जो हम कर सकते हैं अभी के अभी, जितना टाइम हमारे पास है, जितना वक्त हम गुजार रहे हैं लोगों के साथ, कम से कम वो तो सही बीते ना, उतना ही हो जाए, आज के दिन ठीक से निकल जाए, कल का कल देखेंगे। ऐसा अगर आप मान के चल सकते हैं, तो योर जर्नी विल बी अ लिटिल ईजियर फॉर एवरीबडी, फॉर योरसेल्फ एज वेल एज पीपल अराउंड यू। तो केमो स्टार्ट होने के बाद we were advised that this is a type which has been recently diagnosed. So there is no particular chemotherapy protocol which will address this type directly. It was ETP-ALL, that is early T cell precursor acute lymphoblastic leukemia. It's a recently diagnosed subtype. तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर कीमो ड्रग, जनरल कीमो ड्रग तो चलता ही रहेगा ALL के लिए, there's a protocol, but they said that you have to go for a bone marrow transplant because that's the best option for you now. So इस बारे में हम ये बोलेंगे कि देखिए हम लोगों का ना क्या रहता है कि हम कहीं जाते हैं तो हमको ये लगता है कि अगर प्रोग्नोसिस हमारे मन के हिसाब से नहीं हुआ एंड हमको ठीक नहीं लग रहा है, तो हम इधर उधर हर जगह पूछने लगते हैं। हमने भी वही किया। बट पॉइंट इज दैट कि देखिए आप अगर आप एक सही जगह जा रहे हैं, आपको पता है कि ये जगह सही है एंड पीपल हैव बीन गोइंग देयर फॉर क्वाइट सम टाइम, पीपल फॉर डॉक्टर्स आर वेरी वेल क्वालिफाइड, वी शुड ट्रस्ट देयर जजमेंट। क्योंकि इधर उधर जाने में ना बहुत सारी चीजें दिमाग में आ जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव तो कम ही है, इनफैक्ट नेगेटिव ज्यादा आ जाता है। तो वो सारी चीजें प्राइमरीली तो केयर गिवर को इफेक्ट करता है। एंड जैसे केयर गिवर का आपका मान लीजिए आपने कुछ उल्टा सीधा सुन लिया तो आपका चेहरा उतर जाएगा। आपका पेशेंट जो आपके तरफ देख के शी और ही इज ट्राइंग टू गेट होप फ्रॉम यू, दे आल्सो फील दैट समथिंग मस्ट बी रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है इसलिए ये नहीं हो पा रहा है। तो वैसा नहीं करना चाहिए। आई वुड सजेस्ट, देख ठीक है आप डेफिनेटली यू कैन स्टडी योरसेल्फ। मैं भी बहुत पढ़ता था, दिन में 8-10 घंटे तो इसी के रिसर्च पे चला गया, बिकॉज इट्स अ कम्प्लीटली न्यू फील्ड फॉर एवरीबडी। जिसके घर में कभी हुआ नहीं हो उसको तो कुछ भी खबर नहीं रहेगा। तो इस ऐसे थोड़ा भरोसा रख के चलेंगे ना, तो आपका ट्रीटमेंट भी थोड़ा सही होता है, डॉक्टर को भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ आप सही रास्ते पे जा रहे हो, आप उनकी बात सुन रहे हो। आप जाके डॉक्टर को 2-3 और सजेशन दे दोगे तो you understand oncologists are a very tough bunch of people who are dealing with a very tough disease. So if we go and add our limited knowledge to that, of course they might not like that always.
तो हम लोगों ने पहले पहले तो किया, फिर उसके बाद समझ में आ गया कि नहीं नहीं, वॉट एवर इज गोइंग ऑन, लेट अस फॉलो दिस। जो इतने सालों से एस्टेब्लिश्ड है उनको ही फॉलो करते हैं तो इट्स बेटर। तो ऐसे कीमो स्टार्ट हो गया और हमको ट्रांसप्लांट के लिए भी बोला गया। अब कीमो के साथ साथ जो आता है वो है कीमो से ज्यादा, कीमो का असर से ज्यादा साइड इफेक्ट्स। ठीक है। तो मेरे वाइफ के क्षेत्र में केस में, सुरभि के केस में, पहले तो बिकॉज इट वाज अ मैरो डिप्लीटिंग कीमो, तो उनका प्लेटलेट डाउन हो गया। सबसे पहले प्लेटलेट जाता है, फिर डब्ल्यूबीसी डाउन हो गया, फिर उसके बाद हीमोग्लोबिन भी डाउन होने लगा। तो अभी क्या होता है कि आपका जब कीमो चालू होता है तो इनिशियली आपको फ्रूट्स वगैरह, रॉ वेजिटेबल्स एंड ऑल, यू आर नॉट अलाउड टू कंज्यूम। लेकिन थोड़े दिन बाद अलाउ कर देते हैं, वंस द डॉक्टर्स आर कॉन्फिडेंट दैट यू आर रिस्पॉन्डिंग। तो हमको क्या लगा, इधर उधर से पूछ पाछ के हमको नुस्खा मिला कि पपीता, पपाया, अगर पपाया आप खा सकते हैं तो दैट हेल्प्स इन प्लेटलेट बिल्डिंग, ऑल्दो इट इज नॉट मच कंपेयर टू द कीमो इफेक्ट, बट स्टिल उतार चढ़ाव चलता रहा। मतलब जैसे कि थोड़ा कीमो का ब्रेक मिला, तो कभी कभी तो होता था कि एवरी ऑल्टरनेट डे वी यूज्ड टू गो टू टाटा एंड टेक द कीमो, कम बैक अगेन, गो फॉर फॉलो अप एंड ऑल दैट। पपाया हेल्प्ड अ लॉट। और मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप, ऑब्वियसली यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर और द न्यूट्रिशनिस्ट बिफोर टेक कंज्यूमिंग एनीथिंग। लेकिन हमने परमिशन लेके फिर हमने उनको पपाया खिलाया, फिर अनार होता है, पॉमग्रेनेट, थिंग्स विच आर बेसिकली गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो, कोई भी खा सकता है, और कैंसर पेशेंट्स के लिए तो और भी अच्छा है। सेकेंड पॉइंट ये होता है कि जब कीमो स्टार्ट होता है तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ मसल लॉस, थोड़ा सा मसल मास में लॉस होता है। ऑब्वियसली दे विल हैव अ डाइटिशियन हु विल टेक केयर ऑफ इट पीरियोडिकली। लेकिन आपको भी थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रोटीन डाइट्स पे कॉन्सेंट्रेट करूं। इफ नीडेड टेक अ सप्लीमेंट, जो ऑब्वियसली हॉस्पिटल रिकमेंड कर ही देगा। और उसके साथ साथ घर पे जो भी हो सकता है, दाल, pulses, if you're non-vegetarian, the other types of foods which you can take to replenish the protein requirements। क्योंकि मसल लॉस होने लगे कैंसर का, देखिए मेन प्रॉब्लम ये है कि कैंसर में वेट लॉस बहुत फास्ट होता है। तो इफ यू डोंट कीप अप द वेट, देन उसके क्या होता है ना कि आपका जो भी दवाई है वो आपके वेट के हिसाब से कैलकुलेट करके वो लोग देते हैं, तो दवाई का पोटेंसी भी इफेक्ट हो जाता है। तो जो भी कैंसर पेशेंट है उनका वेट मैनेजमेंट इज वेरी एसेंशियल अकॉर्डिंग टू मी। और हम लोगों ने तो बहुत कोशिश किया कि वेट कम से कम डाउन हो, डाउन तो होगा ही थोड़ा सा, दैट यू कैन नॉट हेल्प इट बिकॉज इट्स सच अ डिफिकल्ट ट्रीटमेंट, बट जितना कम हो पाए, जितना हमारे कंट्रोल में है। तो हमको जैसे बीएमटी एडवाइस किया गया, फिर हम लोग क्या करते रहे, केमो चलता रहा पैरेलली। एंड उसके बाद हम लोग इधर टाटा का जो दूसरा ब्रांच है नई मुंबई में, तो एक्ट्रिक करके वी वेंट देयर फॉर कंसल्टेशन ऑन द बीएमटी। अभी उसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट कैसे होता है कि आपका एक डोनर होता है, somebody who is related to you or unrelated to you, उनका स्टेम सेल लेके आप में दिया जाता है, और वो देने के बाद द न्यू स्टेम सेल्स टेक इफेक्ट एंड यू जनरेट अ न्यू सेट ऑफ ब्लड सेल्स। तो दैट इज द बेसिक प्रोसेस विच इज डन। अभी इसके लिए सबसे जरूरी है डोनर ढूंढना। तो हमारे केस में क्या हुआ कि यूजुअली इट इज बेस्ट इफ यू फाइंड somebody फ्रॉम विद इन योर फैमिली who is a 100% मैच, एक HLA मैचिंग होता है, तो अगर वो मिल जाए तो बेस्ट है। तो हमने कोशिश किया, हाफ मैच हुआ, ये हुआ, डॉक्टर्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद द काइंड ऑफ थिंग बिकॉज दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन अ ट्रांसप्लांट। तो उसके लिए फिर हमने अप्रोच किया जो डोनर बैंक्स होते हैं इंडिया में, इंडिया एंड आउटसाइड। तो टाटा इटसेल्फ इनिशिएटेड द सर्च एंड एवरीथिंग। तो इस बारे में मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को, विच आई हैव बीन वांटिंग टू से फॉर क्वाइट सम टाइम। देखिए, ब्लड सेल स्टेम सेल डोनेशन में कोई नुकसान नहीं होता है। हमारे मन में ना एक छोटा सा डर आ जाता है कि क्योंकि 5 दिन तक एक GCSF इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं टू इम्प्रूव योर स्टेम सेल काउंट, तो उसके लिए लोग पीछे हट जाते हैं। होता है, नॉट एवरीबडी, देयर आर वेरी मेनी पीपल हु विलिंगली कम फॉरवर्ड, बट एक जनरल परसेप्शन है हमारे इसमें। तो
मैं रिक्वेस्ट करूंगा लोगों को कि हमारे इंडिया में देयर आर क्वाइट अ फ्यू स्टेम सेल डोनेशन बैंक्स like Datri. First and foremost, we also got our stem cells from Datri. Then there are जीवन है और बहुत सारे हैं इधर उधर के. आप एक बार गूगल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा. प्लीज जाके एनरोल कीजिए. आई हैव ऑल्सो एनरोल्ड एज अ डोनर. आप लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज जाके एनरोल कीजिए. इफ यू आर अ हेल्दी पर्सन एंड इफ यू आर बिलो द एज ऑफ 55, 50 इज द कट ऑफ लिमिट. प्लीज एक बार ढूंढ के तो देखिए. बहुत सारे लोगों का इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू ब्लड कैंसर. आप थैलासेमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, बहुत सारे ब्लड रिलेटेड डिजीजेस है which require a bone marrow transplant and it is the only option for such people. तो लोगों का ऐसा लाचारी बेबसी का हाल हो जाता है ना कि हमने खुद एक्सपीरियंस किया है कि डोनर सर्च हो रहा है, डोनर को कांटेक्ट करना है. वो जो 2 हफ्ते बीते बिटवीन कांटेक्टिंग मतलब गेटिंग द रिपोर्ट एंड कांटेक्टिंग द डोनर, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट पीरियड फॉर अस. मतलब लगभग रात की नींद उड़ गई थी. तो आप लोग प्लीज जाइए, थोड़ा सा देखिए. एक बार देख लीजिएगा तो 10 लोग भी देखेंगे, उसमें से 2 लोग भी रेस्पॉन्ड करेंगे तो इट्स फॉर अ ह्यूज कंट्री लाइक इंडिया इट्स अ बिग फिगर, है ना. आप बाहर देखेंगे तो बाहर में से हर 100 लोगों में से 2 लोग तो आपको डोनर मिल ही जाएंगे. और क्या होता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में द बैंक इज मच मोर यूनिफॉर्म. हमारे इंडिया में पॉपुलेशन थोड़ा हेट्रोजेनस है, तो इसके लिए एक फटाक से एक मैच मिल जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. तो जितने लोग आगे आएंगे उतने आसान होगा किसी को जीवन दान देने में एक्चुअली. और another thing I would like to talk about is that देखिए कीमो के साथ साथ का इफेक्ट तो मैंने मेडिकल वाला डिस्कस कर दिया. अभी बहुत सारी चीजें दूसरी आती हैं. जैसे हम सब जानते हैं बाल झड़ जाते हैं. You lose hair from your head. In fact, Surbhi called up the nearest salon and got the hair removed by herself. She said, "जाना तो है ही, तो फिर क्यों ना हम खुद ही निकाल लेते. कम से कम एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने किया है. हाँ, दवाई के असर से नहीं हुआ." तो that's one way of looking at it. If you can take it positively, again मैं बोल रहा हूँ, अगर आप उसको देखने का 2 नजरिए होते हैं. एक तो है हाँ ठीक है मेरा चला गया, अब मैं क्या करूँ, आई एम नॉट लुकिंग दैट गुड एंड ऑल. लेकिन एक होता है कि हाँ ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ माय ट्रीटमेंट. इसमें शर्म की क्या बात है. देयर इज नथिंग टू बी ashamed of or hide or anything. Be proud of it, embrace it. As soon as you embrace it, you will find lot of freedom in that. मैंने तो देखा है सुरभि के केस में, मतलब she embraced it. Yes, तो क्या हुआ? I am sporting a different look than all of you. That's all. Yeah. And of course, life is more important than our health. Yes, definitely. ये जब आप कर रहे हो अपने लिए तो कर रहे हो, अपने खुशी के लिए, होपिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर, होपिंग फॉर बेटर फ्यूचर फॉर पीपल अराउंड यू. पीपल अराउंड यू से याद आया, केयर गिवर्स, विच इज अ very often neglected segment of people. I would not say neglected but overlooked somehow, क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि this person is suffering from a disease like cancer, so मेरा suffering कुछ भी नहीं है उनके आगे. ठीक है ना. I should give my 100%. हम लोगों ने भी वही किया, मेरे घर वाले, सुरभि के घर वाले, मैं खुद. तो मैं तो ऑफिस भी करता था बीच बीच में, तो जाके फिर आना खाना पीना का कोई ठिकाना नहीं है. आवर्स टुगेदर वी यूज्ड टू सिट एट परेल अवेटिंग आवर टर्न. फिर उसके बाद डॉक्टर लिखेगा केमो होगा, अगर जरूरत पड़ेगा तो वी नीड टू गिव ब्लड एंड प्लेटलेट्स एंड एवरीथिंग. तो पेशेंट का ख्याल तो रख लेते हैं, उसके लिए तो डॉक्टर है, नर्स है, एवरीबडी टेक्स केयर. बट क्या है कि देखिए कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि मेरे वजह से somebody else should suffer, especially a person who is suffering. They know what is suffering and they will never like to see the near and dear ones suffer because of him or her. तो आप लोग प्लीज थोड़ा मतलब जो भी केयर गिवर्स है, इट्स अ बिग फैमिली, अपना थोड़ा सा ध्यान रखिए बेसिक मेंटेन करने के लिए कम से कम, क्योंकि आप ठीक रहेंगे तो पेशेंट को भी देख पाएंगे. पेशेंट का तो उतना कैपेबिलिटी नहीं रहता है कि हाँ वो खुद अपना काम कर ले, तो वो आप पे डिपेंडेंट है इनडायरेक्टली. ठीक है ना. उनको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा डिपेंडेंट होने के लिए, स्पेशली इफ द पेशेंट इज अ यंग पर्सन. बट ये हो गया है, सर्कमस्टेंसेस हो गए ऐसे, ठीक है. दिस इज अ समथिंग व्हिच वी विल गेट ओवर. फॉर द टाइम बीइंग दैट पर्सन इज डिपेंडेंट ऑन यू. तो आप उनका ख्याल रखिए, अपना भी थोड़ा सा ख्याल रखिए. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एकदम टिप टॉप रहिए, आपका ड्यूटी नॉर्मल रहेगा.
of course it can never be, but take care of yourself basically. ठीक है, तो So how you used to take care of yourself as a caregiver? देखिए मैं सच बताऊंगा तो उसमें भी सुरभि का बड़ा एंगेजमेंट रहा है. शी यूज्ड टू फिक्स अप अ रूटीन के मैं जब खाना खाऊंगी आपको भी खाना है, ठीक है. तो मैं बोला बॉस मैं ऑफिस में हूँ या कहीं बाहर हूँ, आई एम गोइंग टू द बैंक और डूइंग समथिंग, मैं उस टाइम पे तो नहीं, वॉट एवर यू ईट इट, बिकॉज शी न्यू दैट वंस आई स्किप दैट मील इट विल बी स्किप फॉर द डे. लंच स्किप हो गया तो हो गया, सीधा डिनर पे आएंगे. तो शी यूज टू डू दैट. ऐसा हर कोई कर पाएगा, नेसेसिटी नहीं है, बट अपने पास थोड़ा सा स्नैक्स रखिए, पानी रखिए हमेशा. आजकल बहुत सारी चीजें आ गए हैं ना, यू कैन टेक अ प्रोटीन बार विथ यू. Not necessarily you might not get the time or the opportunity to sit down and have a full meal every time, but खाते रहिए प्रॉपर इंटरवल्स में, पेट भर के, और प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड. आप मान के चलिए, मैं तो सुरभि को ये चैलेंज दिया था कि तुम जो खाओगी मैं भी वही खाऊंगा. तो and it's good for you. In fact, I lost some weight, and it improved my overall well-being. हेल्प करता है, क्योंकि कैंसर पेशेंट, और अगर कैंसर पेशेंट के साथ साथ आप खाएंगे ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ठीक है सबके लिए पॉसिबल नहीं होता. मैं तो अपना सर मुंडवा लिया था उसके खातिर, ठीक है तुम भी जा रहे हो, आई एम ऑल्सो कॉपिंग योर लुक. लेकिन आप थोड़ा सा अपना खाना उनके साथ मैच कर लेंगे ना, तो दे विल ऑल्सो नॉट फील बैड दैट आई एम द ओनली वन ईटिंग द ब्लैंड फूड. ठीक है, मैं ही सिर्फ सादा खाना खा रहा हूँ, बाकी सब लोग तो अच्छे खा रहे हैं, ऐसा नहीं है. उसका ही खाइए. It's just little things we can do for them. Yes, some simple things we can do to encourage them. Yeah. ये हौसला बना रहता है. तो इतना सा तो हमको देखना पड़ेगा. अब देखिए केमो चलता रहा, उसके लिए तो used to wake up at 6:30, go to the hospital. Every day used to be a blood test. फिर फलाना ठिकाना है. उसके बाद से there used to be some minor OTs also time to time, bone marrow biopsy के लिए. तो these things will carry on. तो आप थोड़ा पेशेंट को भी देखिए, पेशेंट को तो देखना है ही, अपने आप को भी देखिए. और ऐसे ही जब ठीक हो जाएगा ना माहौल, एंड गॉड विलिंग इट विल बी ओके, सो बोथ ऑफ यू विल फील बेटर. ठीक है ना. नोबडी स्टैंड्स टू लूज मच इन दैट केस. तो अभी तो हमारा ट्रांसप्लांट शेड्यूल हो गया. तो ट्रांसप्लांट के लिए वी फाइनली गॉट अ 9 out of 10 मैच फ्रॉम दात्री, and the stem cell was connected, and it was brought to Mumbai. So Mumbai में आने के बाद she got admitted for transplant. अभी इसमें क्या हुआ देखिए, ल्यूकेमिया के बारे में again I'm talking. ल्यूकेमिया में there is a particular term called MRD, minimum residual disease, जो डॉक्टर लोग हर एक केमो कोर्स के बाद चेक करते रहते हैं. तो सुरभि के केस में it is supposed to go to zero, absolutely at least less than 0.01%. बट वो हुआ नहीं. तो एट दैट पॉइंट वी गॉट एन आइडिया, दिस इज, मतलब इट वाज विंडिकेटेड बेसिकली. डॉक्टर ने जो प्रेडिक्ट किया था दैट वाज विंडिकेटेड कि हाँ ये तो ट्रांसप्लांट ही चाहिए इसके लिए, केमो उसमें ज्यादा काम होगा नहीं. तो हम एडमिट कर दिए. अभी बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर, इफ यू हैव एन आइडिया. तो हमको जब पहले दिन खबर लगा, डॉक्टर हमको पूछा कि इसमें आपका अनरिलेटेड डोनर है, he was just doing his job, तो आपको इतने लगेंगे. तो अमाउंट was substantial. I'm not mentioning the amount for all purposes. तो सुन के थोड़ा सा शॉक तो लगा. ठीक है, घर आके बताया तो everybody was dumbfounded, क्योंकि हमको आइडिया नहीं था इतना. बट हो जाता है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि फंड्स ठीक है हर एक के पास होता है, नहीं होता है, बट आप दिल से कोशिश करेंगे ना तो लोग जुट जाते हैं इकट्ठा करने में. In fact, I have also seen few campaigns which are going on. There are a lot of campaigns nowadays. In fact, I forgot to mention Milap hai. There are many and there's Keto and many crowdfunding platforms which are available nowadays. So आप उस पे भी approach कर सकते हैं just to get an idea that how to raise funds. Or there are many people who are really good and who are really helpful. I'm telling you. दुनिया हम लोगों को ना एक नजरिया रहता है कि हाँ पीपल आर मोस्टली कंसर्न्ड अबाउट, ऐसा नहीं है. लोग हैं जो एक दूसरे की मदद करने के लिए रेडी है. आपको सिर्फ पूछना है, आप पूछिए.
अपना अपना जो ईगो और अपना जो एक लाज शर्म का पर्दा होता है ना, what you call it, Yes. our own self image, if you can just cross over and ask for help, there is no shame in asking for help. Yeah. ठीक है ना, हम लोगों को हमने अरेंज किया अपने आप से, लेकिन लॉट ऑफ पीपल केम फॉरवर्ड इवन विदाउट आस्किंग. ठीक है, उनके कॉलीग्स, मेरे फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, एवरीबॉडी, दे केम विदाउट आस्किंग. है ना, आप आपको सिर्फ एक बार बताना होगा कि हाँ, बिकॉज पीपल अंडरस्टैंड इट्स अ जेन्युइन कॉज. कोई आप तो कोई ऐसे वैसे काम के लिए तो ले नहीं रहे हो. तो ट्रीटमेंट मत रुकवाइए, मेरा कोई एक ही रिक्वेस्ट है, कोई भी चल रहा हो, बिकॉज ऑल ऑफ अस कम फ्रॉम डिफरेंट फाइनेंशियल बैकग्राउंड से अंडरस्टैंड. लेकिन ट्रीटमेंट रुकवाना ठीक नहीं है, ट्रीटमेंट चलते रहने दीजिए. और कोई भी हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हर एक के पास फैसिलिटी रहता है पेशेंट को हेल्प करने के लिए. आपको पूछना पड़ेगा, प्लीज पूछिए, हेल्प मांगिए. हेल्प मांगने में कोई दिक्कत नहीं, किसी की जान बच जाएगी, तो उसमें कोई शर्म नहीं है, कोई लाज नहीं है. लेट अस गो फॉरवर्ड एंड आस्क फॉर हेल्प. इफ यू आस्क सीक हेल्प, यू विल फाइंड हेल्प. तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, बीएमटी वाज प्रिटी एक्सपेंसिव प्रोसीजर, बट हम लोगों ने अरेंज कर लिया कैसे भी करके. एंड डॉक्टर्स वर आल्सो वेरी हेल्पफुल. उन्होंने भी स्टेप बाय स्टेप डायग्नोसिस किया, हर एक स्टेप हमको एक्सप्लेन किया, ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, दीज आर द ऑप्शंस दैट यू कैन एक्सप्लोर. करते करते हो गया. फिर आई रिमेम्बर द डे एग्जैक्टली, 2nd October शी वाज एडमिटेड फॉर द फाइनल ट्रांसप्लांट प्रोसीजर्स एंड ऑल. तो एडमिट होने के बाद देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, टोटल बॉडी रेडिएशन रहता है, फुल कोर्स ऑफ कीमो अगेन टू किल ऑफ योर एंटायर बोन मैरो, माइलोएब्लेशन बोलते हैं जो. शी अंडरवेंट दैट. And after that, the transplant was done on 23rd October 2019. So transplant के अभी देखिए एक और पॉइंट है. आई एम सीइंग लॉट ऑफ ट्रांसप्लांट कैंडिडेट्स आल्सो नाउअडेज. आई एम इन टच विद फ्यू ऑफ देम. जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है ना, डॉक्टर लोग तो अपने हिसाब से बोलते हैं, हाँ ठीक है, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू. लेकिन आप भी थोड़ा फिजिबिलिटी देख के आगे बढ़िएगा. ठीक है ना, डॉक्टर आपको पिटफॉल्स भी बताएंगे, लेकिन क्या होता है कि डिसीजन तो डॉक्टर, आपका शरीर है, आपका पेशेंट है, इट्स योर पेशेंट, योर बॉडी, यू हैव टू टेक द कॉल फाइनली. ऑब्वियसली यू हैव टू ट्रस्ट द डॉक्टर, बट टेक अ वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन. तो हम लोगों को जब ये पता लग गया, and in fact the reports were it's themselves speaking that BMT was essential, we went forward with it and the entire thing was done. Then there's a particular thing called chimerism which is analyzed after the BMT. उसमें ये चेक होता है कि डोनर और रेसिपिएंट का कितना परसेंटेज है. तो दैट वाज आल्सो फाइन विथ हर. शी अचीव्ड chimerism 100%, मतलब डोनर का कैरेक्टरिस्टिक 100% आ गया विदिन 15-21 days. तो एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन. बट अभी क्या होता है कि कैंसर पेशेंट का इम्यूनिटी हमेशा ही लो रहता है. कोई भी कैंसर पेशेंट हो, चाहे वो रेडिएशन पेशेंट हो, कीमो पेशेंट हो, उनके इम्यूनिटी डाउन हो जाता है. तो जो भी आपके बिनाइन इन्फेक्शंस होते हैं विच नॉर्मल पीपल कैन फाइट इट आउट, वो उनके लिए बहुत बड़ा साबित होता है. समथिंग लाइक दैट हैपेंड विथ हर. CMV करके होता है, साइटोमेगालोवायरस. तो दैट वाज रीएक्टिवेटेड. दे ट्राइड सम मेडिसिन्स टू ब्रिंग इट डाउन. द BMT अगर आप देखने जाएंगे, ट्रांसप्लांट इटसेल्फ वाज मोर और लेस सक्सेसफुल इन स्ट्रिक्टली इन हेमाटोलॉजिकल टर्म्स. बट ये जो साइड वाला इन्फेक्शन आ गया, that in fact wreaked havoc on her body. तो अब देखिए CMV का transmission modes are multifarious. Maybe during the blood transfusion also it can come because it's such a benign disease, nobody pays an interest to it. इसीलिए मेरा एक और पॉइंट भी है, स्पेशली फॉर पीपल हु आर अंडरगोइंग कैंसर ट्रीटमेंट, कि आप लोग मास्क हमेशा पहने रखिए. सर मैडम जो भी है, Yes. we used to wear a mask even before the COVID-19 pandemic, which has now become a habit for all of us. तो आप जब बाहर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जैसे जस्ट नाउ द सेशन विच वाज गोइंग ऑन आवर हीलिंग सर्कल टॉक्स, उसमें भी बोला जा रहा था कि लोग बाहर से आते हैं, पता नहीं क्या इन्फेक्शन लेके चले जाएंगे. तो आप जब भी रहिए, मान के चलिए कि एवरीबॉडी एल्स इज कैरिंग समथिंग. मिलिए सबसे, लेकिन थोड़ा जैसे हम लोग अभी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं ना, ये आप पूरा टाइम ही मेंटेन करके रखिए. बी इट विद फैमिली मेंबर्स,
क्योंकि a simple cough and cold can also create lot of problems. Survi was suffering from febrile neutropenia. This was in the March month of May 2019 when her chemo course was halfway through. तो WBC count बहुत कम हो गया and the fever हो गया, 14 days के लिए fever चला. So we could not understand what was the cause. Finally, it went away on its own. As soon as the WBC counts recovered, it went away on its own. तो ये चीजें चलती रहेंगी. इससे ना हम लोग देखिए, हम लोग के लिए भी फर्स्ट टाइम था. आज मैं आपको बता रहा हूँ कि घबराइए मत, ये करिए वो करिए. मेरे को बताने वाला कोई नहीं था. It was just second guessing myself and going ahead. But ठीक है, कोई बताने वाला होता तो ये बताता कि ऐसे मान के चलो. आप लोग थोड़ा सा कॉशियस रहिए इस बारे में. कोई भी इशू हो तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाइए. अपना घर जो होमली रेमेडीज होते हैं ना घर वाले, तो लेट अस नॉट ट्राई होमली मेडिसिन ऑन अ रेमेडीज ऑन अ कैंसर पेशेंट. अपने लिए ठीक है, पैरासीटामोल खा लिए, ये खा लिए, वो खा लिए, ठीक हो गया. तो हमारा बॉडी और उनके बॉडी में थोड़ा सा फर्क रहता है. तो let us try to be in touch with the doctor at all the times, and any oncologist will forever be open to any discussion with you at any time of the day, and that is something great which I just have to appreciate. Like they have been all through. आप कोई भी टाइम पे पिंग कीजिए, कुछ कीजिए, क्वेरी कीजिए, ठीक है. अगर समझ में नहीं आएगा तो दे विल आस्क यू टू कम बैक टू द हॉस्पिटल, ठीक है, गेट इट चेक्ड अप. वी हैव आल्सो बीन देयर, मिडनाइट में जाना पड़ा. बट ये चलता है. बीच में क्या हुआ, जो मैंने देखा है, डॉक्टर्स हमेशा एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं. इवन ड्यूरिंग केमो, आफ्टर द ट्रांसप्लांट, सुरभि को हमेशा बोलता था, तू कितना कितना वॉक किया. डॉक्टर और कुछ पूछता नहीं था, कैसे हो, ठीक है, और कितना वॉक किया. तो वॉकिंग इज द मोस्ट बेसिक एक्सरसाइज जो हम कर सकते हैं. तो सुरभि यूज्ड टू व्हाट्सएप मी कि आज मैंने, जब घर पे थी हमारे कॉरिडोर में वॉक करके, शी यूज्ड टू व्हाट्सएप मी, आज मैंने इतना मिनट वॉक किया. ठीक है ना. तो आप सोचिए, पेशेंट खुद इतना मोटिवेट रह सकता है, तो घर वाले तो कुछ हेल्प कर ही सकते हैं ना. इसलिए कोई भी जो चल रहा है, जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है, या whoever is in remission also, प्लीज बी एक्टिव. इतना तो है, आप जितना एक्टिव रहेंगे आपका बॉडी का इम्यूनिटी रिस्पॉन्स उतना अच्छा रहेगा. हेल्दी पर्सन के लिए जितना एप्लीकेबल है, कैंसर पेशेंट और सर्वाइवर इज एप्लीकेबल इन द सेम वे. तो प्लीज बी एक्टिव. ये मैं देखा हूँ, चलने का बहुत सारे फायदे हैं for normal people as well as for patients and people who are in remission. So that is another one of my requests to all of you. So coming back to the journey, ऐसा तो फिर ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट्स की वजह से again her counts dropped, and लास्ट में क्या हुआ कि due to the CMV and the combined effect of low immunity, she developed an autoimmune disease. It was suspected, it could not be confirmed. लास्ट में डॉक्टर लोगों ने यही बोला कि it could not be confirmed because it's called Guillain-Barré syndrome. तो उसके वजह से it affected her brain, it affected her breathing, and for the last 3 days, नहीं, 2.5 I will say, she was on ventilator. तो आप स्पिरिट देखिए एक बार, वेंटिलेटर में है. मैं बीएमटी वार्ड में ना, ऐसे लोगों का इमीडिएट आना जाना अलाउड नहीं होता. इट्स अ स्टेराइल एनवायरनमेंट. So, but since her condition was very difficult and she was quite insistent on seeing her family members, so doctors allowed us turn by turn. वो भी full sterilization के साथ. You have to leave your clothes outside, everything outside, wash yourself thoroughly, and then go inside to see the patient. तो वहां गया तो मुझे ये घड़ी दिखा के बोल रही है कि तुम ऑफिस क्यों नहीं गए, आज वीकडे है, व्हाई आर यू हियर. She was very particular about her work. तो इसमें ना एक चीज हमको मिलता है सीखने के लिए कि देखिए, हम लोग अगर अपने आप को थोड़ा सा अपने बाहर सोचेंगे ना, ठीक है, बॉडी में पेन है, दर्द है, दैट नोबडी कैन टेक फ्रॉम यू. हम शेयर भी नहीं कर सकते. वो एक ऐसा चीज है कि वो कोई नहीं शेयर कर सकता. लेकिन अगर हम इफ वी जस्ट थिंक बियॉन्ड आवरसेल्व्स फॉर सम टाइम बीइंग, आप देखिएगा कि इट हेल्प्स यू. आप थोड़ी देर के लिए ना अपने पेन से बाहर आते हो. यू आर आउटसाइड योर पेन फॉर सम टाइम. You think of others, why is he or she not doing this or that.
तो थोड़ा सा वो एटीट्यूड रखेंगे ना कि हाँ ठीक है, हम तो सफर कर रहे हैं, वो तो कुछ कर नहीं सकते, जो चल रहा है चलेगा. But if we think of others for a little bit, na, then in that case, for at least for those few moments also, you will be free from your pain. That's what she Yes. told me. ठीक है, Hmm. तो वो उधर अंदर बैठ के she used to draw pictures, write essays and everything, just to keep herself occupied and distracted for some time. Walk किया, आया, लिखना चालू. ठीक है, डॉक्टर को दिखाना पड़ता था. अब डॉक्टर आके ये भी टारगेट देता था, आज कितना पेज लिखा, कितना वॉक किया, Oh, wow. कितना लिखा. तो ये सारी चीजें दे माइट नॉट हैव अ डायरेक्ट मेडिकल इफेक्ट, बट होता है. आई हैव सीन लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट. अब देखिए फाइनली बॉडी कैसे रिएक्ट करेगा, हाउ इट विल गो अप हिल और डाउन हिल, दैट वी कांट से. इवन द Hmm. डॉक्टर्स, दे ट्राई देयर बेस्ट, they do their best, but sometimes the body does not listen to all the medicines all the time. But these are few of the tricks that if we can try, I won't say tricks, these are few applications. If we apply ourselves on these things, it's a little bit easier to go through the journey, है ना? Yes. And once you come out of it, you will feel better that I handled it so well, gracefully I handled it, rather Hmm. than thinking only about myself. I thought of others and others thought of me, है ना? और Yeah. ये हमेशा पेशेंट के दिमाग में काम करता है कि क्या they are, I am putting them in trouble. She used to ask me, you are facing a lot of trouble now, your work is getting affected, your sleep is getting affected. I said, that's not an issue. When you will be okay, then you will work, I will sleep. है ना? ऐसे करके Yes. उनको मना के रखना पड़ता था. तो वैसे ही ऑटो इम्यून डिजीज आया, फिर उसके बाद शी कुड नॉट मैनेज टू ओवरकम इट, एंड फाइनली ऑन 18th January last year, 2020, she passed away right before my own eyes. I was fortunately or unfortunately, I was on night duty that day. Doctor had just allowed us. BP drop हो गया, pulse drop हो गया, and but that too she went peacefully, like था ना, just passing off into sleep. Yeah. अब देखिए वो हमारे हाथ में नहीं है. I will not harp on that. किसका बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करता है, बट जो few takeaways from her entire journey was that first and foremost positivity. उसने अपना व्हाट्सएप स्टेटस भी सुरभि ने डाल के रखा था, पॉजिटिविटी इज अ वे ऑफ लाइफ. तो स्टार्टिंग से मैं जब घबरा जाता था अंदर जाके, मतलब सीइंग सो मेनी थिंग्स हैपनिंग एट वन टाइम, कभी बीपी फॉल कर रहा है, कभी ये प्रॉब्लम है, कभी तो उल्टी हो रहा है. यू नो, अंडरस्टैंड वॉमिटिंग इज क्वाइट अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन. Hmm. तो मैं घबरा जाता था ना, मुझे बोलते थे घबराओ मत, थिंग्स आर ओके, ये होता है ना. जब प्लेटलेट Wow. कम हो गया था, व्हेन शी यूज्ड टू कफ, अ लिटिल बिट ऑफ ब्लड यूज्ड टू कम आउट. तो मैं तो देख के घबरा गया, जिंदगी में नहीं देखा हूँ, पहली बार देख रहा हूँ. बोलते हैं चिल, इट्स ओके. तो ऐसे ही, मतलब अगर आप चीजों को थोड़ा सा लाइटली लेना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि काम में लाइटली लीजिए, बट ओवर थिंकिंग ऑन थिंग्स विल रियली नॉट हेल्प यू इन एनी वे. रादर इफ ज्यादा यू फोकस नहीं करना ज्यादा उसमें. फोकस प्रॉब्लम्स पे ना करें, है ना. ठीक है, बोलते क्या हुआ, साफ कर देते हैं, खत्म करते हैं बात, नॉट एन इशू. So she was the one motivating you. Yeah, in fact, she was the other way. Last day when we didn't know that she was going to go that day. मैं नाइट शिफ्ट के लिए जब आया तो 12 बजे नर्स आई, मेडिसिन दिया, एवरीथिंग सब बीपी बीपी चेक किया, और वाइटल्स वर चेक. So she was sleeping with that ventilator mask on her face. She's still looking at the watch. It's 12, and there was a small attendant bed inside the cabin. Hmm. So she's indicating to me that you go and sleep now. It's time to go to sleep. Oh, तो wonderful. इसीलिए बोल रहा हूँ that if you can go beyond yourself for a few moments also, now you forget your pain. Yes, correct. और सबको ही अच्छा लगता है. देखिए किसको अच्छा नहीं लगता है being taken care of. उनका तो ख्याल रख ही रहे हैं. तो पेशेंट का पॉजिटिव एटीट्यूड, केयर गिवर को अपना बेसिक ख्याल रखना, प्रॉपर न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज. मेरे जर्नी से these are the few takeaways which I can say. है ना, and I Yeah. think it is applicable to more or less all the varieties of cancer patients there are. So
इतना के बाद I would like to specially mention the team of doctors which helped her. Uh, Tata Memorial Hospital, Actric in Kharghar, Dr. Singer and our entire team at the hematology department, Dr. Naveen Khatri, Dr. Anand, then Dr. Sachin, Dr. Vijay. So they worked tirelessly. They worked tirelessly day and night. मतलब आई डोज्ड ऑफ, मैं सो जाता था, वो लोग टॉर्च लेके खड़े रहते थे जस्ट टू मेजर द फ्लूइड आउटपुट. ठीक है, तो आई लर्नड डेडिकेशन फ्रॉम देम एंड आई वुड सिंसियरली लाइक टू थैंक देम. लोग बोलते हैं ना डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, तो मैंने देखा है, अपने आंखों के सामने देखा है. भगवान को तो नहीं देखा है, लेकिन इज workers on earth. I have seen them and I would like to thank every one of them from the bottom of my heart. I would also like to thank the very kind hearted people who came within an hour's notice to donate platelets, granulocytes at Tata Hospital for our behalf. क्योंकि उसके लिए डोनर निकालना पड़ता है. You have to find out people. There are some registries. I don't exactly recollect the name. बट उसमें क्या होता है ना कि आप किसी को अप्रोच करोगे, किसी का फोन ऑफ है, ये है, तो मुझे खुद पता नहीं. आई जस्ट सेंट आउट अ व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट दैट आई रिक्वायर दिस एंड दैट. हर कॉलीग्स, माय फ्रेंड्स, दे सेंट आउट messages across Twitter, Facebook, WhatsApp, everybody, and people started pouring in. है ना? I would, एक तो मुझे याद है अभी भी, one person came on crutch. He could not walk. He was a polio patient. वो अपना मतलब ऑटो लेके आया गेट तक, हम उनको रिसीव किए, अंदर गया. अब उनका क्या होता है ना कि डोनर बनने के लिए देयर आर फ्यू क्राइटेरिया टू मैच वेट, हाइट एंड हीमोग्लोबिन लेवल एंड ऑल. तो उसका वेट थोड़ा कम था, तो वो डॉक्टर से, मतलब ही सो इनोसेंट, इज आस्किंग द डॉक्टर, डॉक्टर साहब मैं थोड़ा खाना खा के आ जाऊंगा तो चलेगा ना? शायद मेरा वेट बढ़ जाएगा तो आप ले लोगे मुझसे. मतलब ही वाज सो ईगर. तो ये भी देखने लायक है कि there are so many good people here still in our society who are so eager to help at such a short notice. मैं तो सबको यहाँ पे आई कैनॉट टेक नेम्स बिकॉज देयर वर सो मेनी. मेरा डायरी भर गया था लोगों का नाम लिखते लिखते, कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखते लिखते. बट आई थैंक ऑल ऑफ देम. दे नो हु दे आर. If you ever see this video, you will understand that it is meant for you. Thank you again and again. We could not save her definitely, but I think she will be happy. She could not even meet you people. She was very eager to rather that I should meet them. They have done so much for me, but she could not. But I thank you from my side and from her behalf that you have done a fantastic job. People used to come at around 10:30 in the night, take an injection for granulocyte donation, then come back again next morning and donate. And this has gone on for 2 months. So I can never forget that. I can never forget that. So I am thankful to the entire team, her colleagues, my colleagues, the circle of friends, family, everybody. It's not possible to name and should not name everybody over here. No, everybody might not be comfortable. बट अच्छा ही है दुनिया में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप मदद मांगिए. इफ यू आस्क फॉर हेल्प, जीसस क्राइस्ट बोले थे ना, सीक एंड thou shalt find. समथिंग लाइक दैट. यू सीक हेल्प एंड यू विल फाइंड हेल्प. ठीक है, आप 10 एक्सपेक्ट करेंगे, कम से कम 2 तो आएंगे ना. मदद मिल जाएगी आपको अच्छे कॉज के लिए. पीपल, देयर आर स्टिल पीपल, आई, इट इज माय फेथ इन ह्यूमैनिटी दैट पीपल विल कम एंड हेल्प. We need to focus on the other side of the world and see how beautiful souls are. There are so many beautiful people who are there, who are willing to help you at such short notice. मतलब मैं तो सोचा भी नहीं था कभी. But हो गया. Yes. So, when we come out of any such deep journey, we learn many life lessons. So what are your lessons from your journey? First and foremost is we take life for granted. ये थोड़ा सा philosophical sound करेगा, तो हम क्या करते हैं ना, हम छोटी छोटी चीजों में खो जाते हैं. आज मेरा करियर है, घर का है, कोई राशन के लिए सोच रहा है,
कोई जॉब के लिए सोच रहा है। ठीक है, ये सब जरूरी है, यू नीड दिस ऑल टू कैरी ऑन विथ योर लाइफ, बट लाइफ को थोड़ा जिए, क्योंकि ऐसे फेजेस भगवान ना करे आए, बट आप जब आग बंद करके सोचोगे ना, तो ये सब स्पेशल मोमेंट्स से आपके सामने आते हैं। स्पेशल मोमेंट्स बनाने के लिए आपको खास प्लानिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? आप खुल के जिए, टेक लाइफ एज इट कम्स, डोंट ओवर थिंक and don't underthink also, but don't overthink. It will stress you, and it will take away all the good moments that you are supposed to have right now from you. आपको कुछ खास याद नहीं रहेगा। तो हम लोग वही, मतलब when me and Surabhi used to sit and discuss things, we used to remember all the silly things we used to do, है ना? बांद्रा में जाके वो गोला खाए, इधर भेलपूरी खाया था उस दिन, भेलपूरी खाते खाते कौवा लेके चला गया, ऐसे सब सिली थिंग्स, ऐसी चीजें याद रहती है। तो बट अगर आप कुछ जिएंगे करेंगे एक दूसरे के साथ, अच्छा, आपके सबसे बड़ा चीज तो ये है कि आपके जो, देखिए हम हमारे लिए सबके लिए करना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट जो हमारे फैमिली मेंबर्स है, हमारे लव्ड वंस है, ट्राई टू स्पेंड एज मच टाइम एज पॉसिबल विद देम, ठीक है? आई स्टिल रिमेम्बर वन डे, आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। उसका तब it was before the transplant and she was undergoing all the radiation and all the chemo treatments. तो उसमें हम लोग ना बैठ के, I was also checking my WhatsApp messages and she was also checking her WhatsApp messages, क्योंकि सिग्नल बहुत पुअर था, कभी कभी आता था तो मौका मिला चेक कर लिए। डॉक्टर आके हमको डांट दिए, बोलते व्हाट्सएप ही देखना था तो बाहर बैठ के देख लेते, अंदर आपको 1 घंटे के लिए अलाउ किया है, तो आप उसमें व्हाट्सएप देख रहे हो बैठ के। तो उस दिन हमको थोड़ा सा अजीब लगा, बाद में पता लगा कि वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि देखिए लाइफ इज वेरी फ्रेजाइल, तो आप कोई गारंटी नहीं दे सकते कि आज है, नॉट ओनली कैंसर, कुछ भी हो सकता है ना। आप देखिए, आप कोविड टाइम्स में, नाउ यू कांट मीट योर रिलेटिव्स, है ना, तो आपके उनके साथ जो बिताया हुआ टाइम है वही याद रहता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज अपना लाइफ जिए, ठीक से जिए, अच्छे से जिए, और थोड़ा सा मदद करने की कोशिश करें एक दूसरे की, है ना, क्योंकि कर भला सो हो भला, भला होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इतना तो उम्मीद कर सकता हूँ कि अगर मैं भला करूं 10 लोगों का भी, तो जरूरत के टाइम पे कोई तो मेरा साथ देगा ना। इतना तो हम उम्मीद कर सकते हैं लोगों से, दैट्स द मिनिमम एक्सपेक्टेशन वी कैन हैव फ्रॉम पीपल। तो थोड़ा सा ऐसे चलेंगे ना तो आसान रहता है, और लाइफ को थोड़ा सिंपल रखिए। लाइफ को हम लोग एक दूसरे को देख के, उसके पास ये है मेरे पास क्यों नहीं है, ये जो कंपटीशन में खो जाते हैं, अगेन we lose the very precious time which is life actually. And somebody Survi used to tell me कि देखो हम लोग कैरियर, ये सब पढ़ाई लिखाई इसमें ही खो गए, है ना, तो जैसे बाहर के लोगों को उसको देख के लगता था अरे ये भी हम कर सकते थे, लेकिन ड्यू टू जॉब कमिटमेंट्स एंड टाइट बिजी शेड्यूल वी स्किप्ड दैट, चलो ठीक है अगली बार कर लेंगे, अब अगली बार आया नहीं, है ना। तो ऐसा रिग्रेट्स नहीं आना चाहिए, जितना हो सके एक मोटा मोटा बैलेंस रख के चलिए कि हाँ, मैं आई एम नॉट बी नेग्लेक्टिंग एनीथिंग, नाइदर आई एम ओवरडूइंग एनीथिंग, बस इतना सा है तो काफी है। और जैसे मैंने बताया, प्लीज मेरे जर्नी के टाइम मुझे जो समझ में आया, अपना ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए, दूसरे मतलब द पेशेंट हु इज इन क्वेश्चन, और थोड़ा सा बोन मैरो ट्रांसप्लांट का, बोन मैरो डोनेशन के लिए थोड़ा सा आगे देखिए, दैट इज द बिगेस्ट मैसेज आई कैन गिव एनीबॉडी, क्योंकि हमने जो फेस किया है, एंड आई नो मल्टीपल्स ऑफ पीपल हु आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम अक्रॉस इंडिया। तो अगर हम थोड़ा सा मदद करेंगे ना, आगे बढ़ेंगे, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर। although I have not been fortunate enough to donate stem cells, but I have seen people donate. ऐसा कुछ खास नहीं है जो हमको डर लगता है। थोड़ा सा गूगल में सर्च करिए स्टेम सेल डोनेशन इन इंडिया, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, एंड दैट गोज टू हेल्प लॉट ऑफ पीपल इन मेनी वेज, है ना। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, पेशेंट के लिए और केयर गिवर के लिए भी, बी पॉजिटिव, ठीक है। होनी को कोई नहीं टाल सकता, nobody can change what is going to happen. If good is going to happen, it will happen to you, but right now in this moment in which you and me are present, let us make this the best possible. ऐसा नहीं कि डायग्नोसिस के बाद मेरा जिंदगी का एकदम नजरिया बदल गया, आई एम नाउ चेरिशिंग एवरी मोमेंट। अभी से करना चालू करेंगे ना,
तो फिर someday you will find that you were correct. And what is your thoughts on the work and help Xenonco.io and Levels Cancer are doing? Xenonco is doing a fabulous work, especially the AI tool which has been developed recently. I went through it. It's great. ठीक है. Actually मुझे जितना आइडिया था during the treatment of my wife, एक IBM का AI tool आता था which was helpful in diagnosis, but that was very vague. तो ये जो जेनोंको का टूल है ना, इट्स वेरी प्रिसाइज और हमारे इंडियंस के लिए तो खासकर बहुत ही अच्छा है. और जेनोंको का जो सर्कल है, आई अटेंड द मीटिंग्स क्वाइट ऑफन एंड एक तो टेक्निकल काम हो गया, देखिए, हेल्पिंग द पेशेंट्स, हेल्पिंग देम विद ट्रीटमेंट, और कनेक्शंस तो बहुत ही बढ़िया है. आई कैन नॉट बिगिन टू डिस्क्राइब. और दिस काइंड ऑफ थिंग, इफ actually I regret not coming in touch with Xenonco during the start of our cancer journey, otherwise things would have been a little bit easier for us. लेकिन ठीक है, अभी जो लोग है, I would advise everybody to get in touch with Xenonco and it will only help you. आपको कोई नुकसान तो है ही नहीं, फायदा ही है. So please do it. And टेक्निकल एस्पेक्ट, और आप लोग जो ये कर रहे हैं, द हीलिंग सर्कल टॉक्स एंड एवरीथिंग, जो हीलिंग सर्कल नाम दिए है ना, दैट इज 110% जस्टिफाइड नो. इट इज सो गुड. Although I might not be always a speaker in the circle, but I always see it. Even if I miss it, I see it later on during the week. It has helped me a lot to find out people who have been on the same journey as me or going through the same journey. Sometimes I can help, sometimes I get help from them. Mostly I get help from them only. Trying to understand things, but it, गम बांटने से कम होता है, खुशी बांटने से बढ़ती है. तो गम खुशी मिला के ही दोनों ही बांटते चलेंगे ना, तो Xenonco is the ideal platform for that. And thank you all for very much for that. And you are now contributing in it by sharing your journey and inspiring other cancer patients and caregivers. I hope my journey, Survi's journey and our journey can help you. हौसला बनाए रखिए, ठीक होगा, ये मान के ही चलिए, और कुछ नहीं सोचना है, आगे पीछे कुछ नहीं. डॉक्टर का सुनिए और हौसला बना के रखिए, बस. Yes. And what will be your message for cancer patients and caregivers watching this video? For cancer patients, I will say that be positive, eat properly, exercise properly, take the medications on time, and laugh. Laughter is really the best medicine. You have to find something to laugh in every situation. Keep smiling, and फिर उसके आगे जो होगा वो होने वाला ही है और होगा भी अच्छा. लेकिन इस पल को, right at this moment, don't let it go to waste. Enjoy every moment. केमो लेते हुए भी हंसी है, जरूरत पड़ेगा तो. Seriously, टाटा में nurses used to joke around with Survi during the chemo. हंसते हंसते ले लिया, दर्द भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं. तो थोड़ा सा रखिए. एंड केयर गिवर्स के लिए आई विल ऑलवेज से दैट पहला तो अपना हेल्थ ठीक रखिए, क्योंकि आप ठीक रहेंगे तो पेशेंट भी ठीक रहेगा. एंड सेकेंड ऑफ ऑल, आपके दिमाग में जो भी ख्याल आया है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड एवरीथिंग, ट्राई टू शेयर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स विद द पेशेंट, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है ना. क्योंकि जो इंसान एक somebody who is in lot of pain and suffering, if you speak positive things in front of them, definitely they will also feel positive. It is human nature to do so. So please stay positive in front of the patient at least, and take care of yourself, and study a little bit about the diagnosis and the prognosis if possible, because a well-informed caregiver can really help a lot in the cause of the patient. Yes. So thank you so much for sharing your journey. It was really very inspiring talking to you. Thank you very much. मैं last में just I would like to tilt my screen to show her photo. She is right with us all the time, smiling at us. Yes. And she has beautiful smile. Always till the last day. Wow. Yeah. So thank you all of you from my behalf and from behalf of Survi.
Take care. God bless. Everything will be okay. Yes. Thank you so much. Thank you.